لاش مسلم سے آواز آئی، اے میری زوجہ، تو تم نے حسین پر قربان کیے تو میں نے حسین پر قربان۔ جزاکم اللہ، پرسا دے دیجیے گا، ماتم کر کے پرسا دیجیے گا، اس لیے کہ حسین کی اجڑی ماں آپ سے آنسو گلے میں آ گئی ہوگی، اپنے لال کا پرسا لینے کے لیے حسین کی ماں آ گئی ہوگی۔ آزاداران امام حسین، روایتیں کہتی ہیں ایک منزل ایسی آتی ہے کہ مسلم کے دو یتیم ایسے تھے کہ جب مسلم کے یتیموں کو گرفتار کیا گیا تو روایتیں کہتی ہیں دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم میں سے چھوٹا بھائی قتل ہو جائے، چھوٹا سوچ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میرا بڑا بھائی قتل ہو جائے۔ روایت کہتی ہے جب ملعون نے قتل کرنا چاہا تو ایک مرتبہ چھوٹا کہتا ہے کہ پہلے مجھے قتل کر دو، بڑا کہتا ہے پہلے مجھے قتل کر دو۔ اچانک دونوں کو شہید کر دیا گیا، دونوں کے لاشیں نہر میں پھینکے گئے، لاشیں بغل گیر ہو گئے۔ بابا کو آواز دی، اے بابا، آپ کے جانے کے بعد ہم نے بھیا کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ مسلم کے جنازوں کا، مسلم کے بیٹوں کو جنازوں کا پرسہ آپ نے پیش کیا۔ اب عقیل کے بیٹے، عقیل اولاد عقیل، کربلا میں امام حسین پہ سب جان قربان کر رہے تھے، جہاں سب قربان کر رہے تھے وہاں اولاد عقیل نے بھی جان کو قربان کیا۔ عبداللہ ابن عقیل، محمد سعید ابن عقیل، جعفر ابن عقیل، اولاد عقیل نے بھی بڑھ چڑھ کے قربانی دی اور امام حسین پہ ماتم کیا۔ روایتیں کہتی ہیں یہ عقیل کے بیٹے امام حسین پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ایسے آمادہ تھے کہ امام کے پاس آ کر بار بار کہہ رہے تھے آقا اب ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا اب ہمیں جنگ کرنے کی اجازت دے دیجئے، آقا اب ہمیں میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ لیجئے اجازت ملی، عقیل کے بیٹے میدان میں آئے، ایک ایک کر کے جنگ کرنا شروع کی۔ لیجئے تابوت برآمد ہو رہے ہیں، اولاد عقیل کے تابوت آ رہے ہیں، پرسہ دے دیجئے گا۔ روایتوں نے فقرے لکھے، ادھر جنازے، ادھر امام حسین مقتل میں پہنچے، اولاد عقیل کے جنازوں کو اٹھایا، خیام حسینی میں لے کر آئے۔ روایتیں کہتی ہیں حسین ایک جنازہ لے کر آتے تھے، دوسرے کی آواز آتی تھی آقا میرا سلام قبول کریے، آقا میرا سلام قبول کریے۔ ایک جنازہ لے کر آتے تھے، ایک کی آواز آ جاتی تھی۔ یہ مظلوم امام حسین کی خدا کی قسم جو کربلا کے میدان میں قیامت سیدہ کے لال پہ گزر گئی، خدا کسی کو وہ منظر نہ دکھائے جو حسین نے کربلا کے میدان میں دیکھا۔ ایک جنازہ اٹھانے کے بعد ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، مگر حسین کتنے جنازے اٹھا کربلا کے میدان میں، کبھی دائیں جانب دیکھ رہے تھے، کبھی بائیں جانب دیکھ رہے تھے۔ ماتم آپ نے کیا، اولاد عقیل کا پرسہ آپ نے پیش کیا، اولاد عقیل نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اب جو تابوت آئیں گے وہ اولاد علی کے تابوت ہیں۔ اولاد علی میں اس ماں کے بیٹے بھی ہیں کہ جسے ام البنین کہا جاتا ہے، اس ماں کے بیٹے بھی ہیں کہ جسے ام البنین کہا جاتا ہے۔ ام البنین کیوں کہا جاتا ہے؟ ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹے والی ماں کو، جس کے زیادہ بیٹے ہوتے ہیں اسے بنین کہتے ہیں۔ مگر روایتوں نے عجیب فقرے لکھے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس پہنچ کے مدینے گیا تو اب اگر کوئی ام البنین کو ام البنین کہتا تھا تو ام البنین تڑپ کے رو کے کہتی تھی اب مجھے ام البنین نہ کہو، میرے بیٹے کربلا میں مارے گئے، میرے بیٹے کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ اب جو جنازے آ رہے ہیں وہ اولاد علی کے جنازے ہیں۔ کس کے جنازے؟ جعفر ابن علی، محمد ابن علی، عثمان ابن علی، عبد الرحمن ابن علی، ایک ایک کر کے امام حسین پہ جان قربان کر رہے تھے۔ اولاد علی کا مطلب سمجھے آپ؟ یعنی حسین کے بھائی، ہمارا ایک بھائی اگر مر جاتا ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ جس حسین کے بھائی کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے ہیں، اور ان بھائیوں میں ایسا بھائی کہ جس کا نام عباس بھی تھا، جس کی شہادت پہ حسین نے کمر کو تھام لیا تھا، اور کمر تھامنے کے بعد کہا تھا الان انکسر
जनाजे जा रहे हैं, यकीनन पुरसा दे लेना, इसलिए कि ये सिर्फ अली के बेटे नहीं हैं बल्कि फातिमा के बेटे भी हैं, फातिमा की औलाद भी है। अली का हर बेटा फातिमा का बेटा है। औलाद अली के जनाजे आ रहे हैं। अली इमाम हुसैन के भाई करबला के मैदान में कुर्बानी दे रहे हैं और इमाम हुसैन लाशों को ला रहे हैं। कभी जाफर का लाशा लाए, कभी मोहम्मद का लाशा लाए, कभी उस्मान का लाशा लाए, कभी अब्दुर्रहमान का लाशा लाए। तसव्वुर करिएगा, हकीकत तो यही है कि मसाइब नहीं रुलाता, तसव्वुर रुलाता है। तसव्वुर करें एक वक्त में जिसके 4 भाई खत्म हो जाएं, जिसके 4 भाई इस दुनिया से शहीद हो जाएं, चले जाएं, और एक भाई ऐसा हो कि जिसका न बेटा मौजूद हो, जिसका न कोई भाई मौजूद हो, न कोई लाशें उठाने वाला मौजूद हो, उसकी कैफियत क्या होती है। मगर कितना मजलूम है हुसैन, कितना मजलूम है सैयदा का बेटा, कितना मजलूम है फातिमा का लख्ते जिगर, कितना मजलूम है मेरा मौला हुसैन कि ना अब्बास है ना अकबर है, मगर हुसैन जनाजे पे जनाजे ला रहे हैं। मातम किया आपने, पुरसा पेश किया। अभी तक मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप रोइए, मातम करिए, मगर आपको साहिब औलाद है, हमारी माए बहनें मौजूद हैं। करबला में 2 जनाजे ऐसे थे, 2 जनाजे ऐसे कि जिन पे करबला से कूफा और कूफा से शाम और शाम से फिर करबला कोई रोने वाला मौजूद नहीं था। अभी आपने सुना ना, कोई रोने वाला मौजूद नहीं था। और वो जनाजे किसके हैं? क्या वो जनाजे हैं ज़ैनब के 2 शहजादे, ज़ैनब के 2 शहजादे। मैंने सिर्फ नाम लिया और आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। मैंने सिर्फ ज़ैनब के 2 शहजादे कहा और आपकी आवाज़ें बुलंद हो गई। जरा पूछे कोई उस माँ से कि जिसके शहजादे करबला से कूफा, कूफा से शाम तक ज़ैनब अपने बच्चों पे न रोई। जब भी किसी ने ज़ैनब को देखा तो अपने भैया पे रोते देखा। जिंदाने शाम में ज़ैनब गई तो अपने भाई का मातम किया, जब सर आए तो अपने भाई का मातम किया, जब करबला वापस गई तो अपने भैया का मातम किया। मगर हाँ दराने इमाम हुसैन, माँ तो माँ होती है ना, कब तक माँ अपने दिल को तसल्ली देगी, कब तक माँ अपने दिल को बहलाएगी। मगर जब यही उजड़ी हुई माँ वापस मदीने पहुंची, इमाम सज्जाद को अब्दुल्ला मिले। अब्दुल्ला ने तड़प के कहा, बेटा सज्जाद, अपनी फूफी से कहो कि तुम्हारा अपना भी घर है। ए सज्जाद, अब मुझे अपने घर में अच्छा नहीं लगता, इसलिए कि मेरे बेटे करबला में शहीद कर दिए गए। ए सज्जाद, अपनी फूफी से कहो अब अपने घर आ जाएं। मजलूमियत ज़ैनब पढ़ रहा हूँ, महसूस करिएगा मेरी माँ और बहनों। रिवायतों ने फिक्रे लिखे, ज़ैनब अब्दुल्ला के घर आ गई, आंगन में बैठी हुई हैं, मातम कर रही हैं, पुरसा दे रही हैं, नवा पढ़ रही हैं। अब्दुल्ला घर में आए, क्या देखा? एक बीबी है जो रो रही है, एक बीबी है जो मातम कर रही है। हाथों को जोड़ के खड़े हो गए, बीबी तुझे तेरे हक का वास्ता, ए बीबी मेरा घर करबला में उजड़ गया, ए बीबी मेरे घर में न रो, बीबी जा अपने घर जाकर मातम कर। जैसे ये फिक्र अब्दुल्ला ने कहा, अब अली की बेटी से बर्दाश्त ना हुआ, तड़प के कहती है, अब्दुल्ला शाम वालों ने ना पहचाना, ए अब्दुल्ला मैं तेरी सेना। मातम करें, आवाज के साथ पुरसा दें, इसलिए कि ज़हरा को बावाज़े बुलंद रोने वाले अज़ादार पसंद हैं। हुसैन को इमाम सज्जाद ने यही तो पूछा था मिनाल से, अबू बसीर तू मेरे बाबा पे नहीं रो रहे हैं? रुमाल को आगे बढ़ा दिया। मौला कैसी बातें कर रहे हैं? मौला ये मेरा रुमाल अश्कों से तर है। कहा नहीं अबू बसीर, तू इंसाफ नहीं कर रहा है। कमला फिर अबू बसीर मेरे बाबा पे ऐसे रोया कर जैसे एक ज़ईफ माँ अपने जवान के जनाजे पे तड़प के रोया करती है। ए अबू बसीर, मेरा बाबा इतना मजलूम था कि जो करबला में ये कहते हुए शहीद किया गया, जिसने शहादत से पहले मरसिया पढ़ा, अना कतील आबरा, मुझे रुला रुला के मारा गया, मुझे रुला रुला के मारा गया। तो
पहुंची ज़ैनब, अब्दुल्ला तुमने भी नहीं पहचाना? अब्दुल्ला मैं तुम्हारी ज़ैनब हूँ। जैसे ही ज़ैनब का नाम सुना तड़प गए अब्दुल्ला, हाथों को पकड़ा, जैसे ही बाजुओं पे हाथ रखे अली की बेटी ने हाथों को पीछे कर लिया। अब्दुल्ला जरा आहिस्ता से पकड़ो। कहे ज़ैनब क्या बात है? कहे अब्दुल्ला करबला से कूफा, कूफा से शाम, अब्दुल्ला इन हाथों में रेशमा बांधी गई। ए अब्दुल्ला मेरे हाथों में रस्सियों के निशान, अब्दुल्ला मेरे हाथों में जख्म है। रिवायत कहती है तलवार को निकाल लिया अब्दुल्ला ने, तलवार को निकाला, ज़ैनब ने रोक लिया, अब्दुल्ला ये करबला नहीं है, अब्दुल्ला ये करबला नहीं है। रिवायत कहती है ज़ैनब ने मुसीबतें बयान करना शुरू की। अब्दुल्ला मेरा अकबर मारा गया, अब्दुल्ला मेरा अब्बास मारा गया, अब्दुल्ला मेरे कासिम शहीद हो गए। अब रिवायत कहते हैं अब्दुल्ला ने उठाया और उठाने के बाद अब्दुल्ला के बेटे ज़ैनब के शहज़ादे रख लिया दिल पे साब्र का पत्थर, रोई नहीं ज़ैनब, नाजुक नाजुक से जिस्मों पर जख्म खा कर आए हैं। ज़ैनब की आंखों के तारे खून नहा कर आए हैं। कुर्बान कर दिए। लीजिए आपने ज़ैनब को पुरसा पेश किया, ज़ैनब को पुरसा दिया। अब उसके ताबूत आ रहे हैं कि जिसके बाबा के जिगर के टुकड़े हुए और जिसकी लाश, कासिम की लाश मक्तल में तकसीम हो गई, उन बेटों के जनाजे आ रहे हैं। हसन के बेटों के जनाजे हैं, पुरसा पेश कर लीजिएगा। अब्दुल्ला इब्ने हसन, अबू बकर इब्ने हसन और कासिम इब्ने हसन। इमाम हुसैन पर जान कुर्बान करने वालों में कासिम ऐसे शहीद थे कि जिन्होंने मौत का जायका बताया था। चाचा जान, मौत शहद से ज्यादा शीरी है, मगर खुदा की कसम औलाद वालों का मजमा है, तड़प जाइएगा अगर जुमला बर्दाश्त कर लिया तो। रिवायत कहती है कि कासिम करबला का वो शहीद था कि जब करबला की जमीन पर जीन पर थे कासिम, तब तक तो कासिम थे। और अल्लामा अज़हर हुसैन ज़ैदी ने भी ये जुमला पढ़ा कि कासिम की मजलूमी के लिए कह देना काफ़ी है कि कासिम जब तक ज़ीन पर थे तब तक कासिम थे, जब ज़मीन पर आए तो कासिम कासिम न रहे, बल्कि कासिम की लाश के टुकड़े तकसीम हो गए, कासिम की लाश पामाल कर दी गई। हाँ, आज़ादारान इमाम हुसैन, उसी कासिम का उसी कासिम की गठरी आएगी। अगर जनाजा सलामत होता तो शायद ताबूत आता, मगर हुसैन लाशा लेकर नहीं आए थे। हुसैन ने अबा का दामन बिछाया। जब चले हैं ना इमाम हुसैन मदीने से तो उम्मे सलमा आगे बढ़ी और आगे बढ़ के कहती, हुसैन तुम्हें मालूम है कहाँ जा रहे हो? कहा नानी, करबला जा रहा हूँ। कहा तुम्हें मालूम है करबला की जमीन कैसी है? इमाम हुसैन ने कहा नानी मुझे सब मालूम है। नानी अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको करबला की जमीन का मंजर दिखाऊं, नानी इन दो उंगलियों के दरमियान में देखना शुरू करो। उम्मे सलमा ने दो उंगलियों के दरमियान में देखना शुरू किया। इमाम हुसैन ने मक्तल का मंजर दिखाया। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरे अकबर के नेजा लगेगा। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरा अकबर एड़ियाँ रगड़ेगा। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरे अब्बास के बाजू कलम किए जाएंगे। नानी ये वो मकाम है जहाँ मेरे औनो मोहम्मद सवार किया। इमाम हसन का बेटा मैदान करबला में आए, जंग करना शुरू की। रिवायतों की फखरे ये है कि जंग के कासिम और एक मंजिल ऐसी आई कि कासिम जीन से जमीन पर आए। जैसे ही जीन से जमीन पर आए, इमाम को आवाज दी
इधर से अब्बास चले, इधर से हुसैन चले, इधर के घोड़े उधर हुए। रिवायतों ने फिक्र लिखे, कासिम का लाशा टुकड़ों में तकसीम हो गया। हुसैन करबला की जमीन पे पहुंचे, आवाज दी, कासिम कहाँ हो, आवाज दो, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा कासिम कहाँ हो, आवाज दो, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा कासिम कहाँ हो, आवाज दो, कोई आवाज नहीं आई। रिवायतों ने फिक्र लिखे, एक बुलंदी पे खड़े हुए, ए कासिम, इमाम वक्त आवाज दे रहा है। जैसे ही ये फिक्रा कहा, लाश के टुकड़े ज़मीने करबला पे बुलंद हुए। ए आका लब्बैक, लीजिए चाय गठरी आ रही है। कासिम के बेटों के खैमे में सर झुकाए हुए, आबा में लाश के टुकड़ों को है छुपाए हुए। कहाँ बहन से ये शहने जरा करीब आओ, अरे शहीद हो गया इब्ने हसन को ले जाओ। फिर से आके कुबरा ने जब ये पूछा है, मुझे बताओ फूफी जान किसका लाशा है। अरे लहू में किसके बताओ नहाए हैं बाबा, उठा के गठरी जो मकतल से लाए हैं बाबा। जनाजा क्या कोई ऐसे उठा के लाता है, मुझे बताओ फूफी जान